Hello everyone, myself Jaya Agarwal, Assistant Professor Political Science, SPCGCA Ajmer. This is paper second of BA part first, representative Indian political thinkers, and in this video we will discuss the political views of Manu, the ancient Indian political thinker. So here comes first, that is judicial system. So Manu has mentioned the judicial system in detail. He has classified crimes into 18 categories and the king has to control the crimes. And the judges themselves must be honest, intelligent and impartial. Manu has called the whole judicial system as Vyavhar, and in Vyavhar courts the king sits as chairman or head of Dharma. Manu has mentioned several forms of punishment like scalding, fine, death, etc. according to the crime. Next one is taxation. So treasury is life of the state and king should try to keep it brimful. Nothing can be done without it, like war, performing religious duties, helping the poor, conduct of welfare activities, etc. Whatever the king uh, does can be with the help of taxation or treasury. So Manu has mentioned some principles for the taxation, and like it should be painless, and tax should not be excessive, and money is to be realized for big projects, etc. And there are several types of taxes, like fees on market products, fines, taxes on animals, gold, etc. And next one is organization of society. So Manu has given the detail about the social structure that includes four varnas and four ashramas. Four varnas, that is Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra, and four ashramas were there: Brahmacharya ashram, Grihastha ashram, Vanprastha ashram and Sannyas ashram. And Manu also includes four purusharths, that is dharma, arth, kam and moksha. And it is duty of the king that he observes, he keeps he maintains the whole dharma system, that is varnas and ashramas, that everyone in the society, every person in the society fulfill their duties and works according to these varnas and ashram vyavastha or system. And here comes his thoughts about the fourth one, that is Shudra and women itself. And Manu has not given them importance, and it is a matter of criticism that Manu discriminates here, and Shudra and women have been treated he has not considered them like a citizen, and there are no rights, no freedom, etc. for the Shudras and as well as for the women itself. Next one is interstate relations. Here comes, and when we talk about interstate relations, if the examiner asks about the interstate relations in the descriptive question, then we will include here upayas and sixfold policy, that is Shadgunya policy, ambassadors and diplomats, as well as his thoughts on war, and including Rajya Mandal. And if the examiner asks particular question regarding sixfold policy or Rajya Mandal, then you are to do just only one, like that Rajya Mandal you will write there, and only sixfold policy there. But if we ask about the whole international interstate relations, then these all 4 points will be mentioned there: upayas, sixfold policy, that is Shadgunya Niti, ambassadors and diplomats, plus his thoughts on war, and Rajya Mandal. So first one is that for winning over enemies, Manu recommends to resort to the four upayas, that is Sam, that is conciliation, Dam, that is bribery, Bheda, that is dissension, and
danda, that is use of force, and there will be preference and sequence like that. That first comes the sam, then dam, then bhed, and last one is dand, like force or war. When whole the aforementioned sam, dam, and bhed didn't work, don't work at that time, then we will have to resort to the dand or force or war. Next one is sixfold policy. So the king should concentrate on his objectives, and policies to be applied by the king are six: sandhi, that is treaty; vigraha, that is conflict; yan, that is march or attack or real war; asan, that is sitting and waiting; sanshray, that is surrender or shelter; and dvedibhav, that means twofold policy. And they are also known as Shadgunya mantra or sixfold foreign policies for dealing with the enemy. Accordingly, the king in Sandhi makes peace when he is sure of his own gain and superiority in future, and of his inferiority at present. In Vigraha, he just only prepares for the war, and and he shows just only preparation of war. At this time, at this place, there is no real war. And next one is yan, and in yan he orders march against the enemy. And when asan, he waits and acts as neutral when he is weak. And in Sanshray, he takes shelter with a rich and powerful king, and when he is very easily uh, can be assaulted by, can be attacked by, and can be, and the enemy is so powerful to win him, then he is to take shelter of the a king that is more powerful than the enemy. And lastly, in Dwedi Bhav, the king adopts twofold policy of conflict with one and friendship with other. Next one is in the area of interstate relations. Manu considers the role of ambassadors and diplomats as very important, and also during peacetime their role happens to be very important, making enemies as friends and collection of secret information about the enemy. And his ambassadors should be highly qualified, very intelligent, and loyal to the king. And Manu has written a lot about the diplomacy and preparation of war, etc. And he has paid full attention to the preparation and management of war. And Manu has given all details about the war preparation, conduct, nature of weapons, type of warfare, treatment of the uh, soldiers, and timings, strategies, etc. And Manu has written all these things in such great detail that the Manu Smriti appears to be a manual of warfare. And next one is Rajya Mandal, and the center of the Rajya Mandal is Vijigishu. That's mean a king who desires victory. And here comes the Rajya Mandal, that is a group of states around the king's own. And four tendencies are there when we talk about the Rajya Mandal, that is Vijayishu king, enemy, middle, apathetic state, and eight other prakritis are there in the Manusmriti as well. They are the ally, that is Mitra, ally of enemy; Arimitra, ally of ally, that is Mitra Mitra, ally of the enemy, that is Arimitra Mitra; and Parshnigraha, that is enemy at the back; Akrant, that is aggressor; and Parshnigrahas are ally of enemy at the back, and Akrantas are ally of aggressor. So here comes, that is 4 plus 8 is equal to 12. And here comes according to Manu, each state has 5 material or actual tendencies, that is Amatya, that is chief of ministers or Sachivas; Janpad, countryside area with population; fort, treasury; and Dand, that is fort. Fort here includes
the Rajya that is 72 tendencies are there, or these are called as prakritis. So total prakritis or tendencies are 72 according to Manu, while considering the Rajya Mandal theory in international interstate relations. आज हम लोग बात कर रहे हैं मनु के बारे में। मनु जो हमारे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, सबसे पहले उनके आ जाता है उनकी न्याय व्यवस्था आ जाती है। तो मनु है, उन्होंने न्याय व्यवस्था पर काफ़ी विचार से अपने विचार व्यक्त किए हैं, और उन्होंने अपराधों को 18 श्रेणियों में विभाजित किया है। और जो राजा हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो राज्य में अपराधों को नियंत्रित रखे। उन्होंने जजेस के लिए भी क्वालिफिकेशंस बताई हैं, लाइक उन्हें ऑनेस्ट, ईमानदार, इंटेलिजेंट और बिना किसी भय और पक्षपात के अपना निर्णय देना चाहिए। और मनु ने संपूर्ण जो जुडिशियल सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था है, उसके लिए व्यवहार शब्द का यूज़ किया है। और व्यवहार कोर्ट में जो हेड ऑफ द व्यवहार कोर्ट होते हैं वो स्वयं राजा हैं। और इसके अलावा मनु ने जो पनिशमेंट है, दंड है, उनके कई प्रकार बताए हैं, जैसे डांटना, फटकारना, जुर्माना लगा देना, या कैपिटल पनिशमेंट इसके अंतर्गत आ जाता है, डेथ सेंटेंस आ जाता है, फांसी की सज़ा है, डेथ है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं मनु की कर व्यवस्था के बारे में। तो कर व्यवस्था पर मनु ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि कर है इसी के ऊपर, जो कर व्यवस्था से जो मनी जो गेन होता है, जो पैसा अर्जित होता है, उसी से सभी तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो वेलफेयर ऑफ द लोगों का कल्याण हो, या हमारी आर्मी है उसके लिए कार्य करना हो, या फिर जो पुअर है उनकी हेल्प करना है। वॉट एवर वर्क और फंक्शन वी आर टू डू दैट कैन ओनली बी डन थ्रू दी टैक्सेशन। इसके लिए मनु ने कई प्रकार के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए हैं, और उनका ये मानना है कि जो टैक्स लगाए जाएँ, कर जो लगाए जाए, वो लोगों के भले के लिए लगाना चाहिए। और कर इस प्रकार से लगाना चाहिए ताकि जो कोई टैक्स पे करता है, कर देता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई भी दुख या तकलीफ ना हो। इसीलिए जो कर है वो आवश्यकता से अधिक भी नहीं लगाने चाहिए। और मनु ने जो कर हैं उनके भी अनेक प्रकार बताए हैं, जैसे मार्केट प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर फ़ीस लगाना, फ़ाइन है, जुर्माना है, एनिमल्स और गोल्ड हैं इनके ऊपर टैक्स लगाना, ये सब मनु ने टैक्सेशन के कई प्रकार बताए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। तो सामाजिक जो व्यवस्था के बारे में मनु के विचार हैं वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने 4 वर्णों पर फोकस किया है, जिसे हम लोग वर्ण व्यवस्था कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम व्यवस्था उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया है। इसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम आ जाता है। 4 पुरुषार्थ उन्होंने बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इस प्रकार से उन्होंने एक सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने गठित किया है, जिसके अंतर्गत हर वर्ण अपने धर्म का पालन करता है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण वर्ग का कार्य है पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना आदि। क्षत्रिय वर्ण का कार्य है प्रजा की रक्षा करना, अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करना। वैश्य वर्ण का कार्य है उत्पादन का कार्य करना सॉरी, जिसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य ये सब आ जाते हैं। और शूद्र वर्ण का कार्य है अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। और आश्रम व्यवस्था आ जाता है, ब्रह्मचर्य आश्रम आ जाता है, जो कि जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक चलता है। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम आ जाता है, जो कि 25 से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था जो निर्धारित मनु ने की है। देन वानप्रस्थ आश्रम आ जाता है, जो कि 50 से 75 वर्ष तक के लिए चलता है, जिसके अंतर्गत एक मनुष्य का ये कार्य है कि वह अपने आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करे, समाज को एक नई दिशा दिखाए। और उसके अलावा लास्ट में संन्यास आश्रम आ जाता है। और मनु का ये भी मानना है कि राजा का ये कार्य है कि वह ये देखे कि समाज का प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे, आश्रम व्यवस्था के अनुसार चले, पुरुषार्थ की प्राप्ति हो, और इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म का पॉइंट है, जो यहाँ पर आलोचना का विषय है, वो है मनु के शूद्र और महिलाओं संबंधी उनके जो विचार हैं वो काफ़ी ज़्यादा आलोचना का विषय है, क्योंकि वे शूद्र और महिलाओं दोनों को ही उन्होंने एक तरीके से नागरिक नहीं माना है। उन्होंने यहाँ तक कि उनको बिल्कुल निम्न स्थान दिया है। और
उनके प्रति उन्होंने इतना ज़्यादा अमानवीय दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है। लाइक इनके लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा है, अधिकार है, स्वतंत्रता है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। शूद्र वर्ण का कार्य केवल अपने स्वामी की सेवा करना है। इसी प्रकार महिलाओं का कार्य भी केवल परिवार तक ही उन्होंने सीमित रखा है। परिवार के दायरे से बाहर उसे उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार, शिक्षा, स्वतंत्रता कुछ भी उन्होंने नहीं दी है। नेक्स्ट आ जाता है इंटर स्टेट रिलेशंस, अंतर्राज्यीय संबंध। यदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है अंतर्राज्यीय संबंध, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे सभी तरीके का। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन जाता है, जिसके अंतर्गत 4 उपाय आ जाते हैं और 6 फोल्ड पॉलिसी आ जाती है, षाडगुण्य नीति आ जाती है, एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स जो भी हमारे कूटनीतिज्ञ और दूत व्यवस्था हमारी आ जाती है, मनु के विचार आ जाते हैं वो पर, और इसके अलावा राज्य मंडल का सिद्धांत यहाँ पर आ जाता है, जिसे हम लोग मंडल सिद्धांत भी कहते हैं। और यदि एग्जामिनर पर्टिकुलर पूछता है, लाइक केवल वो आपको षाडगुण्य नीति पूछते हैं या मंडल सिद्धांत पूछते हैं, देन आपका क्वेश्चन में आप केवल उसी को मेंशन करके आएंगे, षाडगुण्य नीति है, राज्य मंडल है। बट अगर एग्जामिनर इंटर स्टेट रिलेशंस कंप्लीटली आपको पूछ रहा है, देन ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी। तो जब हम लोग अंतर्राज्यीय संबंधों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास में 4 प्रकार के उपाय आ जाते हैं, जो कि 1 बाय 1 राजा को अपने काम के लिए, अपना जो एम है उसके लिए करना चाहिए। सबसे पहला आ जाता है साम यानी समझाना, दाम यानी कोई ब्राइबरी, गिफ्ट, किसी भी तरीके का जो प्रलोभन है। भेद आ जाता है, भेद का मतलब होता है फूट डालना शत्रु पक्ष में। और दंड आ जाता है। तो मनु का ये मानना है कि जबकि साम, दाम और भेद, इन तीनों से काम नहीं बनता है, तब लास्ट उपाय के रूप में दंड, फोर्स या वॉर को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है 6 फोल्ड पॉलिसी आ जाती है, जिसे हम लोग हिंदी में षाडगुण्य नीति कहते हैं। षाडगुण्य मतलब षट प्लस गुण, मतलब 6 गुणों वाली नीति, जिसे परिस्थिति के अनुसार राजा को अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाता है संधि। संधि का मतलब है जबकि राजा को यह लगता है कि इस राजा के साथ में या इस पक्ष के साथ में संधि करने से मुझे वर्तमान में या भविष्य में किसी भी प्रकार का लाभ होगा, तो उसे उसके साथ में संधि कर लेनी चाहिए। विग्रह का अर्थ होता है, विग्रह का मतलब वास्तविक आक्रमण नहीं होता है, इसका अर्थ केवल युद्ध की तैयारी होता है। एक तरीके से शत्रु पक्ष को ये दिखाना होता है, अपनी युद्ध की प्रिपरेशन दिखाना होता है, ताकि शत्रु पक्ष में थोड़ा सा इस तरीके से भय का माहौल पैदा हो जाए। यान का अर्थ होता है वास्तविक आक्रमण, जबकि आप शत्रु के साथ में डायरेक्ट युद्ध में उलझ जाते हैं। आसन का अर्थ होता है, आसन का अर्थ होता है तटस्थता, जबकि राजा को ये लगता है कि उसकी स्थिति काफ़ी निर्बल है, शत्रु है प्रबल है, और उसे खुद को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए। तब उसका ये काम होना चाहिए कि वो एक बार शत्रु पक्ष के साथ में युद्ध को एक बार होल्ड पर डालकर, एक बार रोक कर तटस्थता की नीति अपनाए। संशय का अर्थ होता है कि जबकि राजा ये देखे शत्रु से अधिक शक्तिशाली है, तो उसे किसी अन्य राजा का या बलवान जो भी राजा होता है उसका संशय, आश्रय ले लेना चाहिए। द्वैधी भाव का अर्थ होता है टू फोल्ड पॉलिसी, 2 प्रकार की नीतियाँ एक साथ अपनाना, जिसके अंतर्गत आप एक ही टाइम में शत्रु के साथ में और एक ही टाइम में अपने मित्र जो राजा हैं उसके साथ में आप 2 प्रकार के व्यवहार की नीति एक ही टाइम पर अपनाते हैं। एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स आ जाते हैं, जिनको मनु ने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रोल उनका माना है, क्योंकि इनका ये कार्य होता है कि एनिमीज़ होता है उनको मित्र बनाना, और जो एनिमीज़ होते हैं उनके बारे में जितनी ऑथेंटिक जो न्यूज़ होती है, ऑथेंटिक उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, सूचनाएं होती हैं, वो राजा तक पहुंचाना। तो इस प्रकार से एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स दूसरे राज्य में राजा के लिए ये काम करते हैं। इसके अलावा वॉर पर मनु ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में विचार दिया है, इसके अंतर्गत उन्होंने युद्ध संबंधी नीतियाँ, जो भी हमारी स्ट्रेटेजीज रहेंगी, युद्ध नीति रहेगी, इसके अलावा सैनिक पक्ष की तैयारी और इन सब के ऊपर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला है। और मन की खास बात है कि जब वो वॉर की बात करते हैं, तब उन्होंने जो धर्म युद्ध है उसको उन्होंने सपोर्ट किया है, जो कि बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग एक फ़ाइट किया जाता है। और
नेक्स्ट आ जाता है राज्य मंडल सिद्धांत आ जाता है। राज्य मंडल या मंडल सिद्धांत आता है। मंडल का अर्थ होता है राज्यों का एक समूह, दैट इज राज्य मंडल, राज्यों का एक समूह। 12 राज्यों का एक समूह माना गया है जिसका केंद्र बिंदु विजिगीषु राजा होता है। विजिगीषु राजा मतलब एक राजा जिसमें जीतने की इच्छा है, जो विजय की चाह रखता है और जो अपना टेरिटोरियल जो एरिया है उसे निरंतर बढ़ाना चाहता है। तो इसके अंतर्गत जब हम लोग 12 प्रकृतियों की हम लोग बात करते हैं तो 4 टेंडेंसीज तो हो जाती हैं। खुद विजिगीषु राजा हो जाता है, एक शत्रु पक्ष हो जाता है, एक मिडिल हो जाता है जो कि मध्यम राज्य जिसे हम लोग कहते हैं, जो विजिगीषु और एनिमी दोनों की सीमाओं पर स्थित होता है, और एक अपैथेटिक स्टेट होता है जिसे हम लोग हिंदी में उदासीन राज्य कहते हैं। ये इन सबकी सीमाओं से बिल्कुल परे होता है, काफ़ी ज़्यादा दूर ये एक स्थित होता है और उदासीन जैसा ये रहता है। इसके अलावा 8 राज्य आप हम लोग देख लेते हैं। पहला आ जाता है अलाया मित्र, तो विजिगीषु राजा इसके अंतर्गत आ जाता है। पहला आ जाता है अलाया मित्र, दूसरा आ जाता है अलाई ऑफ एनिमी यानी अरी मित्र। नेक्स्ट आ जाता है अलाई ऑफ अलाई मित्र मित्र। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा है कि एक राजा की राज्य की सीमा से जो लगा हुआ जिसकी बॉर्डर टच हो रही है वो 101% उस राजा का शत्रु होता है, और राजा की सीमा से परे लेकिन शत्रु राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य रहेगा वो राजा का हमेशा मित्र रहेगा। तो ये जो हम लोगों ने एक सीक्वेंस हम लोगों ने देखा है ये इसी तरीके से चलेगा। अलाई दैट इज़ मित्र, अलाई ऑफ एनिमी दैट इज़ अरी मित्र। अरी मित्र मतलब दुश्मन का मित्र, दुश्मन का मित्र मतलब हमारा शत्रु। अलाई ऑफ अलाई आ जाता है मतलब मित्र मित्र, अलाई ऑफ द एनिमी दैट इज़ अरी मित्र मित्र। इसके अलावा बैक साइड में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में आ जाता है जिसके लिए मनु ने वर्ड यूज़ किया है पार्ष्णिग्रह, मतलब एनिमी एट द बैक, पीछे की ओर का शत्रु। आक्रांत आ जाता है मतलब राजा का पीछे की ओर जो मित्र है। इसी तरीके से पार्ष्णिग्रहसार नेक्स्ट लेवल आ जाता है और आक्रांतसार उससे नेक्स्ट लेवल आ जाता है। तो ये तो हमारे पास में 12 टेंडेंसीज होती हैं, लेकिन मनु का यह मानना है कि जो 12 टेंडेंसीज हैं इनमें से हर टेंडेंसी के पास में 5 हमें जो 5 हमें ये जो प्रकृतिज हैं एक्स्ट्रा वो हमें 101% देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत आ जाता है अमात्य दैट इज़ मंत्री, जनपद आ जाता है, फोर्ट मतलब दुर्ग आ जाता है, ट्रेजरी दैट मीन्स कोष आ जाता है, दंड या फोर्स यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार से टोटल जो टेंडेंसीज हो जाती है राज्य मंडल के अंतर्गत वो जाती है 72। That's all for today from my side. Thank you very much.